Assalamu alaikum my beloved students. Today we will see some extra questions on force and laws of motion, as well as I will explain you that how to solve different type of examples, different type of questions, sums in the physics. So let's begin with that. Here the first question is, a bullet fired against a glass window pane makes a hole in it. So first we will understand the question. And the glass pane is not cracked. So what are they saying in this? That if we will fire a bullet on the glass pane, then the glass pane will not break. Means it will not smash, only there will be small hole. But on the other hand, when a stone strike the same glass pane, if it will be hit by the stone, then it gets smashed. So why is it so, and how's that happen, that you have to answer. So we understood the question. Now let us try to answer it. So first here they have talked about the bullet. Let's take it quite practically. I have given you one example, one activity of inertia. In that we have seen the example of that coin, cardboard and glass. कार्डबोर्ड को हम जितना फास्ट उसे वहाँ से मूव करेंगे, जितनी फास्ट उसे हिट करेंगे, तभी जो कॉइन है वो एग्जैक्टली ग्लास में गिरेगा. But if you will take it very gently, very slowly, then coin will come with that cardboard only and you will be failed in that experiment. So that only works here. Let's see how. When the bullet strike the glass pane, its velocity will be very higher compared to the stone, right? Stone को हम फेंकेंगे उसकी velocity और जो bullet fire होगी उसकी velocity. बुलेट की वेलोसिटी स्टोन के कंपैरिजन में बहुत ही हाई होगी. दैट इज़ ओनली द रीज़न बिहाइंड दिस. सो व्हेन वी विल फायर द बुलेट, द पेन विल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बुलेट, immediately shares the very large velocity, hence it makes a hole, और अपना पोर्शन होल हो जाएगा. While the remaining part of the glass remains at the rest and therefore will not smash the glass due to the rest or due to the inertia of rest. So I told you that here two things will work, the velocity and the inertia. But when a slow moving stone strike the same glass pane, the various part of the glass pane gets enough time to share the velocity of stone and it will get smashed. So likewise you have to understand, you have to think about it, and then you have to answer it. Let's move with the next question. This also you have seen in our garden. Water sprinkler used for grass lawns begin to rotate as soon as the water is supplied. If there will be no supply of the water, then sprinkler will not rotate. But as you will apply, as you will give supply of the water, it will start to rotate. So you have to say that, explain the principle on which it works. So we have seen the example of third law of motion. We have seen one activity in the previous video. So on that law only this will work, action and reaction. So let's see how will you answer it. The working of the rotation of sprinkler is based on the third law of motion, and then after you will give reason behind that. As the water comes out of the nozzle, from here you can see, as the water will come out from the nozzle, will with a very high amount of force, there will be an equal and opposite reaction. That's why the sprinkler will start rotate. Understood? Next question. Why does an athlete put some sand or cushion on the ground while high jumping? Here you are having one picture. In this high jumper uses a cushion.
So we have to answer that why is it or why are they using this. So for this, let me give you one simple example. If you will take a glass and if you will throw it down on the ground, then what will happen? It will break. But if you will throw it on the cushion, on the pillow cover or on the pillow, then what will happen? It will not break and वो थोड़ा जंप करेगी और फिर बाद में सेटल डाउन होगी. सो सेम फंडास वर्क्स हियर. इसमें क्या होगा? व्हेन अ हाई जंपर फॉल्स ऑन अ सॉफ्ट लैंडिंग साइट, तो उसकी जो मोमेंटम है वो इमीडिएटली ज़ीरो नहीं हो जाएगी. नाउ व्हाट इज़ मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. उसकी मोमेंटम यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम ज़ीरो नहीं हो जाएगी, वो एकदम रेस्ट पोजीशन में नहीं आ जाएगा, एकदम फास्ट रेस्ट पोजीशन में नहीं आ जाएगा. वो थोड़ा टाइम लेगा रेस्ट पोजीशन में आने के लिए. उसकी वजह से क्या होगा? उसे इंजरी नहीं होगी. लेट्स सी हाउ टू सेटिस्फाई दिस आंसर. देन द जंपर टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम टू स्टॉप, क्योंकि उसकी वेलोसिटी सडन ज़ीरो नहीं हो जाएगी. वेलोसिटी सडन ज़ीरो नहीं होगी तो मोमेंटम भी ज़ीरो नहीं होगी, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एथलीट इज लेस, यानी सडन ज़ीरो नहीं होगी. ड्यू टू दिस द एथलीट डज नॉट गेट हर्ट. बट if there will be no cushion, then what will happen? The momentum will be reduced to zero in a very short time. Means velocity will be zero, and if velocity will be zero, then momentum will be zero. Hence the force, very large amount of force, opposing force will act on the athlete, which cause a serious injuries to the athlete. That's why they are using cushion or heap of sand. Understood? Next. Why do the driver and the person seated in front seat need a seat belt? So the question is asking that why a driver sitting in the car need a seat belt. This is the rule also, right? So why is it so? In a car accident, the fast running cars stop suddenly. यानी उसकी वेलोसिटी जो है बहुत हाई होती है, सडनली वो ज़ीरो हो जाती है. सो ड्यू टू दैट द मोमेंटम रिड्यूस टू ज़ीरो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट होगा तो क्या होगा? वो आपको सडनली आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा. यानी अगर आप हिट हो रहे हो कोई चीज़ के साथ या स्टीयरिंग व्हील के साथ, तो वो एकदम फास्ट नहीं होगा, वो आपको स्लो डाउन करके फिर ये होगा. सो व्हाट विल हैपन? द स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट टाइटन बाय द पैसेंजर्स ऑफ द कार इंक्रीजेज टाइम टेकन बाय द पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड. यानी आप इतना फास्ट आगे मूव नहीं करोगे, जितना स्लोली मूव करोगे उतनी इंजरी भी आपको कम होगी. सिंपल सी चीज़ है. अगर आप अपना हेड बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़ोर से कोई चीज़ के साथ स्ट्राइक करोगे तो आपको इंजरी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वही प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी तो इंजरी कम होगी. That's why for that reason they are using the seat belt, and we must have to use the seat belt. Now next question. We have seen some practical questions, and such type of practical questions they can ask in board exams also and in these exams also. So you need to have practice of such practical questions. Okay. Now let's move with the next question and we'll see that how to solve the sum. A man throws a ball of mass 0.4 kilogram vertically. Now in physics, how will you solve the sums?
You will read the question and whatever the quantity they have given to you, you will list out all the given quantities. ये आपको कैसे हेल्प करेगा? आप जितनी क्वांटिटीज़ को लिस्ट आउट कर लोगे उतना आपका सम जो है वो इजी हो जाएगा. ऑटोमेटिकली आपको स्टेप्स मिल जाएंगे आपका सम सॉल्व करने के लिए. ओके, सो दिस step is necessary to solve any kind of sum in the physics. A man throws a ball of mass 0.4 kg. Means from this sentence you will get mass that is 0.4 kg. पूरा क्वेश्चन बाद में रीड करना, पहले क्वेश्चन रीड करते जाओ और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो भी क्वांटिटी मिल रही है, उसे लिस्ट आउट करना स्टार्ट कर दो. विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ u 10 मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम? सो यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम. सो यू विल राइट देयर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. देन आफ्टर व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम एट द हाइएस्ट पॉइंट, यानी मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये हमने लिस्ट आउट कर लिया. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन, यानी जो लिस्ट आउट किया था उसमें क्या फाइंड आउट करना है. तो क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंटम. तो अब सोचो कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. सो इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी जाएगी. Here initial velocity is 10. So mass into velocity, hence 0.4 into 10. So your answer will be 4 kilogram meter per second. Now ये एक क्वेश्चन तो फाइंड आउट कर लिया. अब दूसरा क्या है? मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स रीच. अब सोचो कोई भी बॉल अगर आप ऊपर फेंकोगे तो एट सम हाइट इट विल स्टॉप एंड देन इट विल कम डाउन, right? It will fall on the ground. So at that particular point, at that highest point, you have to find the momentum. तो वो few seconds के लिए वहाँ stop होगा. So at that time the velocity will be 0. So 0 into any number, your answer will be 0. So as the velocity is 0, your momentum will be 0. Understood? This is how you have to solve the sums in physics. Moving with the next question, which would require a greater force? मतलब क्या find out करना है यहाँ पर? Force. So we will write there force is equal to question mark. Accelerating a 2 kilogram mass, मतलब mass दिया है m is equal to 2 kilogram at 5 meter per second square. पर ये सेकेंड का है जो पावर वो नेगेटिव है, मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी यहाँ एक्सेलरेशन दिया है a1, यानी मास 1 का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास 2 का 4 किलोग्राम एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये दोनों में से किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, दैट यू हैव टू फाइंड. तो अब आपके पास मास है, एक्सेलरेशन है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है उसके रिगार्डिंग? m इंटू ए. तो m1 के लिए, फोर्स 1 के लिए m1a1 एंड फोर्स 2 के लिए m2a2. नाउ कंपेयर देम, यू विल गेट द आंसर. सो जितना क्वांटिटी को लिस्ट आउट करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा टू सॉल्व द सम. इज दैट क्लियर? मूविंग विद नेक्स्ट. The velocity time graph of an object of mass m is equal to 50 gram shown in figure. मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि भाई एक ग्राफ दिया है और मास दिया है that is 50 ग्राम. So you will list out that mass is equal to 50 gram. And now let us observe the graph. Here time is in second, velocity is in meter per second. 0 to 120 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है अभी और 120. और यहाँ टाइम इंटरवल्स दिए हैं 0, 3, 6 एंड 10. और डिफरेंट टाइम इंटरवल पर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है. तो देखो यहाँ पर 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर कितनी हो रही है? 120. एंड देन आफ्टर बिटवीन 3 to 6
इट्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज़ 120, यानी 3 to 6 के बीच में वो कांस्टेंट स्पीड पर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर जा रहा है जो 120 है, और उसके बाद 6 to 10 के बीच में जो है वो डिक्रीज हो रही है. ओके, सो वी अंडरस्टूड द ग्राफ एंड वी हैव मास ऑल्सो दैट इज़ 50 ग्राम. 50 ग्राम को हम कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में. यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज़ यूनिट. यूनिट कन्वर्जन इज नेसेसरी फॉर यू. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द फर्दर क्वेश्चन. कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to 3. क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स. तो लिखो फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कौन से टाइम के बीच में? 0 to 3. 0 to 3 मीन्स ये कितना टाइम कहलाएगा? 3 सेकेंड, राइट. तो आपके पास अब टाइम भी है 3 सेकेंड, आपके पास मास है 50 ग्राम, आपको फाइंड आउट करना है फोर्स. तो सोचो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma. तो ma में अब आपके पास मास है लेकिन a नहीं है, तो a फाइंड आउट करने की ट्राई करो. आप a आपको कैसे मिलेगा? अब सोचो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो v माइनस यू अपॉन t, जहाँ v और u हमारी वेलोसिटीज़ है और t टाइम है. तो वेलोसिटी तो हमारे पास है ही यहाँ पर ग्राफ में, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. तो अभी 0 to 3 के लिए, ये टाइम के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, और 3 के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 120. तो यहाँ u जो है वो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज़ फाइनल दैट इज़ 120. सो बाय पुटिंग इन दिस फार्मूला यू विल गेट a, और फिर वो m और a मिल गया, मतलब आपको फोर्स मिल जाएगा. अंडरस्टूड? दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व. और यहाँ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम स्मॉलर क्वांटिटी है, किलोग्राम इज़ ग्रेटर. तो जब स्मॉलर टू बिगर जाना हो तब आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, और 1 किलोग्राम इक्वल कितना होता है? 1000. सो यू विल डिवाइड इट बाय 1000. अगर स्मॉलर टू बिगर है तो डिवाइड, और बिगर टू स्मॉलर है तो मल्टीप्लाई. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो, स्मॉलर टू बिगर यानी जब आप छोटे, जब आपके भाई बहन छोटे होते हैं, जैसे जैसे वो लोग बड़े होंगे आपकी चीज़ें जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी. यानी ऐसे याद रखो, स्मॉलर टू बिगर यू हैव टू डिवाइड. दिस यूनिट कन्वर्जन इज़ वेरी इजी, डोंट गेट कन्फ्यूज. सो वी विल गेट द फोर्स F1. नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 6 to 10. यानी अब कौन से टाइम इंटरवल के लिए जाना है? 6 to 10. तो 6 to 10 में कितना टाइम होगा? 4 सेकेंड. 10 - 6 यानी 6 के बाद क्या? 7, 8, 9 एंड 10. तो यहाँ कितना होगा? 4 सेकेंड. सो टाइम यहाँ पर आपको मिल गया 4 सेकेंड. अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 6 पर देखो वेलोसिटी क्या है? 6 पर 120. तो इनिशियल वेलोसिटी 6 के लिए अब क्या हो जाएगी? 120, और फाइनल यानी 10 पर यहाँ फाइनल वेलोसिटी वो कितनी जा रही है? ये कंपेयर करो, 0. ओके, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, और टाइम भी है. टाइम क्या है? 4, और फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल है 20. सो 0 माइनस 120 अपॉन 4, you will get acceleration. You have force or mass also, so you will get the value of force. Understood? Let's move with the next question. Is there any time interval in which no force acts on the object? If yes, then justify your answer. देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कंटिन्यू है. तो अगर उसको आप यहाँ पर रखोगे एक्सेलरेशन में तो वेलोसिटी आपकी कंटिन्यू है, चेंज नहीं हो रही है. मतलब 120 माइनस 120 आंसर क्या हो जाएगा? 0. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0. वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी. ओके, दैट्स वाई एज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज
0, hence force is equal to 0. Understood? This is how you have to solve the questions in the physics. Thank you. Have a great day.